So now I'm going to start with the concept of queues. So let's understand before, like, what exactly is the queue and what is the significance, like why we are basically, understanding this topic. Okay. See, uh, let me take you to the Salesforce instance. See, if I go to the account object and if I open any of the record, for example, Merck Corporation, right? And now see, if I, for example, this is a record Merck Corporation, and who is the owner of this record? If I wanted to check like who is created this record, Merck Corporation, so it's like training my Salesforce batch 201. So he's the owner of this record. Fine. And with this is with every record. If you go with like development user record number one, so if you wanted to see that who is the person that who created this record, so for this, there is a field called as account owner. Here you could identify like user development. This is the user who has created this record, right? Who has created this record. So this is for every record, this is for every record. Now, this is the record like user one, Mark and Corporation, and this is being created by this record, this user. Now see, we were discussing one thing yesterday, like whenever we, what is the difference between transferring a record or sharing a record. That is what we are going to see right now. See, uh, hmm, whenever we transfer a record, or rather, sorry, whenever we share a record from one user to another user, if the user share a record to another user, so there was a concept of level of access. So whenever we share a record to a second person, now the second person could either have read-only access and read-write access. But in both of the cases, if you give him this access, he could only read the data. That's it. But he cannot do any sort of editing, and even he nor he could delete the record. Then if you give read write access, for example, to the second person, to the second user to whom you share the record, if you have given him a read write access to, then the second person could either read the data, or he wanted, he could edit the data also. But in both of the cases, in both of the cases, the second person cannot delete the record if we have read access, or rather if we have read write access. In both of the cases, in both of the cases, that if we share a record, the person to whom we have shared this, the second user, the user to whom we have shared the record, he cannot delete the record, because deletion, he must be the owner. If he is the owner, then only he could delete the record, otherwise not. So the major difference, difference between record transfer and record sharing is like, when you share a record, whenever you share a record, now you can share it automatically, you could share it manually, you could share, Apex sharing, whatever. But important is what, whenever you share the record, so the owner doesn't changes. Owner is still that particular person. जैसे हमने क्या किया था last time, what we have done is कि कुछ records हमने share करे ना, जैसे ये development user record number 1 ये बनाया, इसको कुछ users को share किया. By the way, who created this? Development user created. So who is the owner? Who's the owner? Development user is the owner. Now because this person, development user, has decided कि ये record को मैं share करता हूँ manager को, testing को, customer को, जिसको भी, तो जब वो share करेगा record, तो ownership change नहीं होती है. Ownership will still be user development. Let me show you that. If let's go to the user section, वहां से ज्यादा अच्छे से हमको समझेगा. Let's go to the user and let's open any of the user. For example, मैं ऐसा manager user पे login करता हूँ and I go to the accounts and I open this report. तो देखिए अभी we are into the login of manager user वैसे तो, and we are seeing a record whose owner is who? Development. Why this user manager could see this record? Because this manager user, this development user has shared the record to him. That is why. I don't know what kind of access. Let me see. Okay, it's read only access, because we could see insufficient privilege. That means it's a read only access. If he even if try to delete, see what happens. If he, are you sure you wanted to delete? Okay, insufficient privilege. See. So this person, manager user to whom the record is shared, he can read or read write. वो depends कि उसको क्या permission दी गई है. But he cannot delete the record, because if he wanted to delete,
he must be the owner of this record. तो यहाँ पे ये मैनेजर यूजर है, but who is the owner? Development user is the owner. And even if you try to change it over here insufficient papers, देखो नहीं कर सकता. So this is what the major difference between record sharing and transferring a record. Whenever we share a record, जैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि डेवलपमेंट यूजर ने ये रिकॉर्ड नंबर 1 शेयर किया है. किसको शेयर किया है? मैनेजर यूजर को. So although this manager can access the record, but he cannot delete. Why? Because for deleting, he must be the owner. Only owners can delete the record. Only owners can delete the record. So whenever you transfer the ownership, now that second person could delete the record. Vote कर सकता है. लेकिन अगर आप रिकॉर्ड शेयर करते हो तो वो सिर्फ उसको एडिट कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता. So this is what the difference between record sharing and record transferring. तो अब हम रिकॉर्ड ट्रांसफर करने का सीखने वाले हैं, मतलब उसमें एक यूज का कंसेप्ट आएगा. तो चलिए मैं कुछ दिखाना चाहता था आप लोगों को. इफ आई गो टू अकाउंट, है ना, एंड इफ आई ओपन एनी ऑफ द रिकॉर्ड, अकाउंट में जाता हूँ, तो इफ आई नाउ सी अकाउंट ओनर वैसे तो यही यूजर है 201. नाउ इफ आई वांटेड टू चेंज दिस, तो मैं चेंज के बटन पे क्लिक करता हूँ. तो फिर यहाँ से ना, यहाँ इसमें देखो आप, यहाँ पे ऑप्शंस आपको कितने नजर आ रहे हैं. तो हियर यू हैव 2 ऑप्शंस, है ना. आप चाहो तो कोई दूसरा यूजर, किसी और, मतलब मर्क इनकॉर्पोरेशन फिलहाल हु इज द ओनर, ट्रेनिंग बैच यूजर इज द ओनर. ठीक है. नाउ इफ यू वांटेड टू चेंज दिस ओनरशिप, अभी ये ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है अपने को यूजर का. तो आई कुड चेंज द ओनरशिप ऑफ दिस रिकॉर्ड. आई कुड चेंज इट टू यूजर, कस्टमर, डेवलपमेंट, या किसी को भी दे सकता हूँ. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी, और अदर लेट्स मेक अ न्यू अकाउंट रिकॉर्ड. एक नया अकाउंट रिकॉर्ड बनाता हूँ. ट्रांसफर ओनरशिप एग्जाम्पल record number 1. ठीक है. With this account prospect, industry is biotechnology, annual revenue is this, rating is hot, phone number is this, fax number is this, website is this, and ownership is public. Okay. Customer priority is high, active status is yes. And let me try to save this. Save and ignore. Duplicate हो रहा है और कुछ नहीं. Okay, so I have created one of the record with the name transfer ownership example record number 1. Who created this? Training batch user. ठीक है, training batch user, training Salesforce batch user. Now he is the owner of this record. चलो, तो let me now try to change the ownership. तो उसके लिए क्या है, देखिए आप यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको. This is something called as manually. ये manually कर रहा हूँ मैं. इसी को ऑटोमेटिकली अपन कैसे करते हैं वो अपन सीखने वाले आगे चल के विद द कंसेप्ट ऑफ क्यूज. फिलहाल आप जो देख रहे हो वो मैनुअली है. I'm manually transferring the ownership to some other user. I'm manually transferring the ownership to some other user, rather development user. चलो, तो अभी अगर मैं development user पे login करता भी हूँ, by the way, let me go with manage users and users, and if I now log in into the development user, अगर मैं development user में जाता हूँ, accounts में जाता हूँ, तो देखिए आप, इसको फिलहाल वो रिकॉर्ड नहीं दिखेगा, all accounts. ठीक है. इसको अकाउंट रिकॉर्ड टेस्ट नंबर 1 जो भी है यहाँ पे, ये सब दिख रहे हैं, बट ही वोंट सी दिस रिकॉर्ड. अभी जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया मैंने? ट्रांसफर ओनरशिप एग्जाम्पल रिकॉर्ड 1. तो ये रिकॉर्ड इसको अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है. ठीक है. तो अब मैं लॉग आउट करता हूँ यहाँ से. अब मैं रिकॉर्ड शेयर नहीं कर रहा हूँ, अभी हम दूसरा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, और यहीं से आपको डिफरेंस पता चलेगा शेयरिंग के बीच में और ओनरशिप ट्रांसफर करने के बीच में क्या फर्क है. रिकॉर्ड शेयर करना या रिकॉर्ड ट्रांसफर करना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग राइट नाउ. ठीक है, आइए. सो आई एम एक्चुअली ट्रांसफरिंग दिस. तो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ ओनरशिप का, एंड हियर वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस, यूजर, पार्टनर यूजर. यूजर, पार्टनर यूजर. ठीक है. यहाँ पर आपको देखिए अकाउंट, कॉन्टैक्ट्स, इन अपॉर्चुनिटीज में यही 2 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन जब आप केस और लीड में जाओगे तो आपको एक ऑप्शन नया और मिलेगा, वो मैं दिखाता हूँ क्या है. पहले हम फिलहाल जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक पे रहते हैं. सो आई एम ट्रांसफरिंग द ओनरशिप of this record to a user. Which user? Development user. Let me select user development from here and then save it. तो इससे भी क्या हुआ है कि अब इसके बाद, because now see ownership has been transferred. Previously it was training batch user, now you see who is the owner? New owner, user development. ये बिल्कुल ऐसा कि एक प्रॉपर्टी थी अपनी जो अपन ने बेच दिया सामने वाले को. तो अब जो सेकंड, पहले हम ओनर हुआ करते थे, एक फ्लैट था हमारा, वी वेयर द ओनर, नाउ वी सेल इट आउट.
to a second person. Now the second person becomes the owner of this. So because he paid us and he is the owner, he could do everything. So this is also, one of the way we could make a second person to access the record. तो अगर हम एक रिकॉर्ड चाहते हैं कि कोई दूसरा एक्सेस कर पाए तो उसके दो तरीके होते हैं सेल्सफोर्स में। देखो, एक होता है रिकॉर्ड शेयर करना और दूसरा होता है रिकॉर्ड ट्रांसफर करना। जब आप शेयरिंग के ऑप्शन देते हो किसी भी यूजर को, तो वो उसको रीड कर सकता है, या दूसरा, अगर आपने रीड राइट परमिशन दे रखी है तो वो रीडिंग और राइटिंग दोनों कर सकता है, लेकिन वो डिलीट नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो कि उसको फुल कंट्रोल मिल जाए कि भाई जिसको हम दे रहे हैं ये रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए, तो वो इस रिकॉर्ड को रीड करे, राइट करे या डिलीट करे, वो सब कुछ करे, तब आपको शेयरिंग नहीं करनी है, तब आपको रिकॉर्ड की ओनरशिप ट्रांसफर करनी पड़ती है। तो ये जो मैंने आपको बताया, दिस वाज मैनुअल ट्रांसफर। व्हाई? बिकॉज आप यहाँ गए, आपने क्लिक किया, उसके बाद आपने यूजर सिलेक्ट किया, यूजर में से फिर आपने ये मैनुअली किया सारा, आपने डेवलपमेंट यूजर सिलेक्ट किया, फिर आपने सेव किया। So this is what you have done. So this is something called as manually transferring the ownership. तो अब चलिए हम यूजर डेवलपमेंट पे चलते हैं, लॉग इन करते हैं और अकाउंट्स में जाके देखते हैं कि वो रिकॉर्ड हमको मिल रहा है या नहीं। तो ऑल अकाउंट्स में चलते हैं। अब आप देखें एक रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है, ट्रांसफर ओनरशिप, ये वाला। तो ये रिकॉर्ड इसने क्रिएट नहीं किया था, हालांकि ये रिकॉर्ड ट्रेनिंग बैच सेल्सफोर्स जो यूजर है उसने क्रिएट किया था। सी ट्रेनिंग माय सेल्सफोर्स बैच यूजर था इसका, देन ही चेंज दिस अकाउंट ओनर। अकाउंट ओनर जो है वो ट्रेनिंग माय सेल्सफोर्स बैच से किसको मिली? अकाउंट डेवलपमेंट। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख रही है, आपको दिख रही है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे वी कुड प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ एनी रिकॉर्ड टू सेकेंड पर्सन, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर करना ओनरशिप। अब इस सूरत में ये जो व्यक्ति है ना, ये चाहे जो चाहे वो कर सकता है, वो एडिट भी कर सकता है या फिर वो चाहे तो डिलीट भी कर सकता है। इनफैक्ट अगर ये चाहे तो इस रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकता है। हो गया। तो बिकॉज क्या हुआ, इसको ओनरशिप मिल गई है। ओनरशिप मिल गया मतलब ही कुड एक्सेस, ही कुड डू एवरीथिंग व्हाटएवर ही वांटेड टू डू। तो ये एक डिफरेंस होता है बिटवीन रिकॉर्ड ट्रांसफर करना, रिकॉर्ड शेयर करना और रिकॉर्ड ट्रांसफर करना। और ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज मैनुअली ट्रांसफर करना। तो हम किस तरह से मैनुअली ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। आइए अब मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, अब मैं एक्चुअल कंसेप्ट पे आता हूँ। मुझे आपको आज जो टॉपिक लेके जाना है वो है क्यूज। अब क्यूज का क्या इंपॉर्टेंस आता है ये मैं बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्यू ये ऑप्शन कहाँ कहाँ नजर आता है, ठीक है। तो चलिए हम अकाउंट्स पे हैं, लेट मी वन सेकंड रिफ्रेश दिस। तो हम अकाउंट्स पे हैं फिलहाल। अकाउंट पर अगर मैं किसी भी रिकॉर्ड की ओनरशिप अगर मैं चेंज करने चाहता हूँ, सो आई हैव ओनली टू ऑप्शन। आई कुड प्रोवाइड द ओनरशिप ऑफ रिकॉर्ड टू यूजर और टू द पार्टनर यूजर, ठीक है। पार्टनर्स अभी आपने क्रिएट नहीं किया है तो यू डोंट अंडरस्टैंड कि पार्टनर्स होते क्या है। लुकअप ब्लैंक आएगा इसके लिए। नाउ दिस वाज अकाउंट ऑब्जेक्ट। नाउ लेट मी गो विथ कॉन्टैक्ट एंड लेट मी ट्राई टू ओपन एनी ऑफ द कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड मैंने ओपन किया। फिलहाल हु इज द ओनर? ट्रेनिंग माय सेल्सफोर्स बैच 201 इज द ओनर। एंड इफ आई वांटेड टू चेंज द ओनरशिप, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड है, तब भी आई विल हैव ओनली टू ऑप्शंस, ठीक है। इफ आई गो टू अपॉर्चुनिटी एंड इफ आई ट्राई टू ओपन any of the record and then if I try to transfer the ownership, here also I have only two options: user, partner user, right? So this is what you get everywhere. Now let's go with the cases. अब हम ये देखो, अब अकाउंट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गई। अब हम केस ऑब्जेक्ट और लीड ऑब्जेक्ट पे चलते हैं और यहाँ कुछ नया दिखने वाला है, ठीक है। लेट्स ओपन दिस केस डिटेल्स, ठीक है। Who's the owner of this case? Training my Salesforce batch 201 is the owner. If I now wanted to manually transfer the ownership, so how many options here I have? I have user, partner user. Then apart from this, I have one more option is there, queue and customer portal user also. But then I have an option called as queue. That means a case can be transferred to a user, whether the user is simple user, partner user, portal user, whatever, or the case can also be transferred to queue. A case record can be transferred to a user. User could be a plain user, a partner user, or a portal user. Ultimately, all of them are users. ठीक है। तो यहाँ मुद्दे वाली बात ये आती है कि whenever we wanted to transfer the ownership of a case, we have two options: user और queue. User और queue. User मतलब सारे user, partner user, portal user, सब users में आएंगे। और दूसरा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? queues. अब क्यूज क्या है मैं बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि देखिए क्यू सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। मतलब ऐसी कौन कौन सी ऑब्जेक्ट है जहां पे आपको क्यूज नजर आता है।
देन गो टू द लीड, क्योंकि आपने देखा अकाउंट में, कॉन्टैक्ट में, अपॉर्चुनिटी में ये ऑप्शन नहीं था आपके पास, ये ऑप्शन अभी आपके पास केस में आया है। लेट मी ट्राई टू ओपन एनी ऑफ द लीड रिकॉर्ड। ये एक लीड रिकॉर्ड है, अगर मैं इसकी ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहूँ, हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव? अगेन आई हैव यूजर्स एंड क्यू, यूजर एंड क्यू. So these two object, case object and lead object, these objects are often known as queue supporting object. और कुछ और ऑब्जेक्ट्स मैं बताता हूँ, फिलहाल जो आपके सामने में वो, these objects are known as queue supporting object. These objects are known as queue supporting object. One second. One second. ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि क्यूज नाम का एक कंसेप्ट है कि हम ओनरशिप रिकॉर्ड की यूजर को भी दे सकते हैं। जैसे मैं भी एक यूजर हूँ, आप भी एक यूजर हो, मैं एक रिकॉर्ड उठा के आपके हाथ में दे सकता हूँ। आई 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 विल से कि देखिए आज से इसके ओनर आप हो गए। तो I could transfer or record, I could transfer the ownership of a record to a user. And in case of lead object and case object, you can transfer ownership even to queues, even to queues. तो यहां से ये शब्द जो है, यानी यहां से ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। तो अब जैसे कि हमको ये पता चला कि दो ऑब्जेक्ट्स ऐसी हैं, लीड और केस, जिसका रिकॉर्ड किसी क्यू को भेजा जा सकता है। नहीं, इफ आई सेलेक्ट क्यू एंड ट्राई टू सी, तो मुझे अभी तो कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज मैंने क्यू फॉर्म ही नहीं किया हुआ है, राइट। तो अभी तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं ये, लेकिन जब हाँ क्यू बना लूंगा तब क्यूज के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहली चीज जो इस वक्त मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग आइडेंटिफाई करें वो ये है कि इफ द रिकॉर्ड इज लीड रिकॉर्ड और केस रिकॉर्ड, तो यू कैन ट्रांसफर ओनरशिप टू अ यूजर। आप चाहें तो किसी यूजर को ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं एज यूजुअल, जैसा कि किसी यूजर को सिलेक्ट कर दिया और उसको ओनरशिप दे दिया, जैसा मैंने अभी अकाउंट में दिखाया आपको, ना वैसा कर सकते हैं। और एल्स यू कुड ट्रांसफर द ओनरशिप आल्सो टू द क्यूज, क्यूज को भी दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ लीड और केस के केस और कहीं नहीं। अब अकाउंट में आप चाहो तो अकाउंट में आप जाओगे, आप कोई भी रिकॉर्ड ट्राई करो, तो आप अगर उसको चेंज करना चाहोगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ यूजर का ऑप्शन मिलेगा, क्यूज का नहीं मिलेगा। क्यूज का ऑप्शन आपको दो ही जगह मिलेगा, एक आपको मिलेगा केस ऑब्जेक्ट पे और दूसरा मिलेगा लीड ऑब्जेक्ट पे। तो यही दो इकलौती ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसकी ओनरशिप को हम क्यूज को दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है, वो है क्यू। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यू एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। क्यू एग्जैक्टली होता क्या, आइए। क्यूज के साथ ही आपको असाइनमेंट रूल्स भी पढ़ने हैं। चलिए, तो क्यूज बेसिकली होता क्या है, इसके लिए एक डायग्राम है, आइए देखते हैं। चलो, तो देखिए, लीड ऑब्जेक्ट और केस ऑब्जेक्ट, सबसे पहली बात तो यही दो जगह है जहां पर हमने क्यूज को देखा है ना। वी हैव सीन द लीड, क्यूज को कहाँ देखा हमने, एक तो केस में और दूसरा लीड में। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट का नेचर कैसे आप समझो। अगर मैं बात करूं लीड की, लीड क्या होती है, हमने बहुत पहले ये डिस्कशन किया था, काफी शुरुआत में जब आपकी बैच शुरू हुई थी, और जब मैं आपको लीड कन्वर्शन प्रोसेस के बारे में बता रहा था, देन आई टोल्ड यू वन थिंग, व्हाट इज अ लीड फर्स्ट ऑफ ऑल। वन सेकेंड, lead is not exactly a customer, but lead is something called as a potential customer, because lead could be a person, could be an organization, but lead is someone who actually showed interest onto your product. If you're selling something, so lead is someone who showed interest. Now this, because he showed interest, there are possibility that he could buy the product. So lead क्या है, lead is something that showed interest onto your business, onto your product, onto your whatever. So if we spend some time, and if we provide some convincing to that particular person or organization, we could convert him to the client, we could convert him to the customer, he could buy something. That is what the concept of lead. A second is what case.
See, whenever a person has bought something, where if we sell, if we are as an organization, let's understand this right now. If we are an organization, if we are Dell organization, for example. Now, we are something called as Dell organization, and we manufacture different types of laptop. Now, we recently have launched a laptop, and there are so many persons, there are so many customers that they have purchased this. So this is my customer database, okay? And I have in thousands of the entries over here. These are the people, that those who have purchased this laptop, this model laptop. Now see, let's take this example. One of them, for example, this is a person. There are, for example, there are 10,000 person into this list. One of them, or probably more than one of them, are facing some issues with the laptop they recently have purchased. So what they will do, they will raise a case. They will raise a case. Case means complaint. They will raise a case. How? How they can raise a case? There are 2 to 3 ways, a person could raise a case. There are 2 to 3 different ways a person could raise a case. He could call you. He could call you onto some sort of toll-free number, or rather, he could go to your website. Onto the website there may be some provision that you have given. If you have any complaint, you could go and fill this form, something like that. Or rather, he could write one email to you mentioning the details of his complaint, whatever he's facing the issues. So there are 2 to 3 different ways a person could raise a case. Now, whenever a client of us, whenever a customer of us actually raise a cases, we have somebody who will take this case. So these are called as the customer care centers. This customer care centers they are actually the people, those who understand the nature of the cases, and they will accept the queries, and they will say कि हाँ ठीक है, हमको आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई है, चाहे वो मेल के थ्रू आपने भेजा, चाहे आपने फोन किया उनको, या फिर आपने फिर उसके वेबसाइट पे जाके अपना कंप्लेंट रजिस्टर किया. एनीवेज व्हाट यू हैव डन. So there are few of the people, every organization have this. Okay, those who attend these cases, they understand what the problem you are facing, and accordingly that, they will generate a case for you. And they will even acknowledge कि आपको acknowledgement आता है कि okay, your case has been registered with us. देखो, हमने भी वो templates बनाई थी जब हम email templates का काम कर रहे थे. That time probably we also have developed some sort of template जिसमें हमने ऐसा कुछ लिखा था कि yes, we registered your complaint, we have registered your case with us, and very soon one of a service agent or something like that will contact you, something like that. तो हमने ऐसा कुछ किया था. So these are the people, those who take care of the cases and those who register the case. Now, what they will do, they will first of all, fill the form, generate the case, and then they will transfer this case to. See, these are not the person those who can solve. They are not. They are actually non-technical people. अभी एक लैपटॉप में प्रॉब्लम आया है, तो उसके लिए तो कोई ना कोई टेक्निकल इंजीनियर ही चाहिए. They are not the person. They are just the person who can route the cases. वो एक जगह से दूसरी जगह कस्टमर से लेना और उसको आगे फॉरवर्ड करना, ये इनका काम होता है. So what they will do, they will understand the nature of problem, and accordingly they will generate a case. They will generate a case. हो सकता है हम ऐसा मान के चलते हैं कि if you go to the केस ऑब्जेक्ट, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये लोग जो है ना, ये कस्टमर केयर वाले ये जो बैठे हुए हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि इनके सामने ना इस तरह का एक फॉर्म है. ये देखो, ऐसा एक फॉर्म है जहां पर वो अच्छा, किसने हमको कांटेक्ट किया. भाई अगर कोई कस्टमर है तो उसका नाम भी होगा. एशली जेम्स ने कांटेक्ट किया था. किस तरह की केस है? इलेक्ट्रिकल केस है. हम ये अज्यूम करके चलते हैं. अब ये फॉर्म में हम और एंटिटीज भर सकते हैं. केस का रीजन क्या है? उसके कुछ तो भी ब्रेकडाउन हो गया उसका. ठीक है. स्टेटस क्या है? इसके पहले आया था क्या? नहीं, इसके फर्स्ट टाइम है. अभी उसने हमको कॉल किया. प्रायोरिटी क्या है? हम मान के चलते कि नहीं, एशली को प्रॉब्लम जा रही है, हाई प्रायोरिटी है. केस ओरिजिन क्या है? केस कैसे उसने रजिस्टर किया? फोन किया था, ईमेल किया था, वेब किया था. तो हम मानते कि उसने हमको फोन किया था. ठीक है. प्रोडक्ट नंबर क्या था? ये वाला प्रोडक्ट था, मान के चलो 3040. पोटेंशियल लाइबिलिटी है क्या उस पर? नहीं. और जो भी सब्जेक्ट, अब यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा उसका, डिवाइस फेलियर, उसका डिस्क्रिप्शन, कोई भी कमेंट, एंड देन वी विल सेव दिस रिकॉर्ड. तो हम ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि ये जो लोग बैठे हैं, ये कस्टमर केयर वाले, उनकी स्क्रीन पर उनको क्या नजर आ रहा है? इस तरह का एक फॉर्म नजर आता है, और जहां पर वो ये केस रजिस्टर करता है, और इसको अब केस को फॉरवर्ड करेगा. इस केस को फॉरवर्ड करेगा. तो अब जब वो केस को ओनर ट्रांसफर करेगा, तो ही हैव एन ऑप्शन कॉल्ड एज क्यू. तो ये केस जो है, केस का ओनर जो है वो क्यूज को क्या होता है? ये क्यूज क्या कंसेप्ट है? ओनरशिप यूजर को देना तो हमारे समझ में आता है.
कि इसका मतलब किसी यूजर को असाइन करना होता है कि ये केस जो है आप हैंडल करो, एज अ टेस्टिंग यूजर आप हैंडल करो, मैनेजर आप हैंडल करो, डेवलपमेंट आप हैंडल करो। ये हमारी समझ में आता है, लेकिन क्यू को देना ये क्या है, ये कुछ नया कंसेप्ट है। क्यू क्या होता है भाई, क्यू कौन होता है असल में, ओनरशिप क्यू को देने से क्या मतलब आती है, तो ये एक नया कंसेप्ट है जो हम समझ रहे हैं। और मुझे समझ रहा है कि आपको यूजर का मतलब समझ में आ चुका है, आप जानते हो कि ये केस यूजर को असाइन करना मतलब उस पर्सन को असाइन करना, कि ये जो केसेस आई है, एशली की जो केस है, ये आपको आपको अटेंड करनी है और आपको देखना है कि एशली को क्या प्रॉब्लम जा रहा है। लेकिन ये तो ठीक है, यूजर समझ में आ गया, क्यूज क्या होता है, ये नया कंसेप्ट है अपने लिए। ठीक है, आओ देखते हैं। देखो, तो होता ऐसा है बेसिकली कि जैसे अब ये केस रजिस्टर हो गई ना, अब ये केस रजिस्टर हो गई, ये के वाली जो केस है वो रजिस्टर हो गई। 1 सेकेंड। ये है केस, ये केस अब रजिस्टर हो गई, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग यार। So this customer raises a cases, and for example, any one of them has attended this case. Now the case has been registered. ठीक है। अब ये केस जो है, सी अब यहाँ पर एक पॉलिसी है बिजनेस की। वी विल आस्क यू, वी विल आस्क द कस्टमर कि आप कौन से सिटी को बिलोंग करते हो। अगर कस्टमर बिलोंग करता है हैदराबाद को, अगर कस्टमर हैदराबाद को बिलोंग करता है, तो ये जो केस है, दिस शुड बी ट्रांसफर टू हैदराबाद। हैदराबाद में जो इंजीनियर्स है वहां पे, ठीक है। अगर ये कस्टमर बोलता है कि मैं बैंगलोर का हूं, तो दिस केस शुड बी नाउ ट्रांसफर टू बैंगलोर। ठीक है। अगर कस्टमर बोलता है कि भाई मैं मुंबई का हूं, तो दिस केस शुड बी नाउ ट्रांसफर टू मुंबई, है ना। अगर वो बोलता है मैं नागपुर का हूं, तो दिस शुड बी ट्रांसफर टू नागपुर। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि देयर इज एन पॉलिसी, यहाँ पर एक पॉलिसी है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक पॉलिसी है कि आप उस कस्टमर से पूछिए, जब आप उसका डेटा एंटर कर रहे हो, है ना, व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ केस रिकॉर्ड, आप जब यहाँ पे केस रिकॉर्ड, जैसे ये वाला केस रिकॉर्ड आप कर रहे हो, तो आप उसको पूछो कि भाई तेरी सिटी क्या है। यहाँ पर एक एक और हमको हो सकता है हमको यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट करनी पड़े, ये कस्टमाइज करना पड़ेगा ना आपको अपने हिसाब से। अभी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है केस का, बट इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर मान के चलो कि यहाँ पर एक हमने सिटी नाम का एक बना रखा है, एक पिक लिस्ट बना रखी है कि वी हैव एन वन ऑफ द पिक लिस्ट ओवर हियर, एक हमने पिक लिस्ट बना रखी है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल। लेट मी शो यू दैट। हवा हवाई बातें क्यों करना, हम क्रिएट करते हैं सब सब। चलो हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर एक कस्टमर सिटी नाम की एक पिक लिस्ट बनाते हैं, जिसमें वैल्यूज रखते हैं हम, जैसे कि यू नो हैदराबाद, दूसरी सिटी हम बैंगलोर, तीसरा प्रोबेबली लाइक मुंबई। ठीक है, ऐसा बैंगलोर, ओके। एंड I'm creating one new city, one new field inside the case object। एक पिक लिस्ट मेनू मैंने बना लिया, चलो हो गया, फील्ड क्रिएट हो गया है। नाउ लेट्स गो टू द केस, लेट्स गो टू द केस, और ये जो केस मैंने बनाया था इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एडिट करता हूँ एक बार। तो सिटी जो है, कस्टमर सिटी, फॉर एग्जाम्पल इफ द सिटी इज बैंगलोर, हैदराबाद। नाउ सेव दिस रिकॉर्ड। तो अब हम मान के चलते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक पॉलिसी है, वो ये है कि अगर इफ द कस्टमर सिटी इज हैदराबाद, कस्टमर का जो सिटी है वो हैदराबाद है। छोटा एग्जांपल रख रहा हूं मैं, 3 ही सिटी के लाइक हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई। तो ये जो केस बनी है, ये केस किसको ट्रांसफर होना चाहिए, हैदराबाद वालों। मतलब वो सारे इंजीनियर्स जो हैदराबाद के काम करते हैं, भाई ऑब्वियसली ना। अब ये कस्टमर अगर हैदराबाद का है, तो उसको हैदराबाद वाले ही अटेंड कर सकते हैं, उसका एड्रेस लेके, हाँ आप कहाँ रहते हो, चलो आप एक काम करो, अपना लैपटॉप हमारे सर्विस सेंटर है ये यहाँ पे ला लो। या फिर एक काम करता, हम एक बंदा भिजवा देते हैं आपके घर पे, वो देख लेगा अगर ऑन साइट होता है तो, नहीं तो फिर अगर बड़ा फेलियर है तो फिर हाँ, फिर हमको लेके जाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। अगर ये बैंगलोर को ये बोले कि नहीं मैं बैंगलोर का हूँ, तो फिर उसका सिटी क्या रहेगा, बैंगलोर। तो ये जो केस है वो कहाँ जानी चाहिए, बैंगलोर। अगर ये बोले कि मैं मुंबई का हूँ, तो सिटी ये जो केस है ये कहाँ जानी चाहिए, मुंबई में। तो अब आप क्यू के कंसेप्ट को समझो। पहले तो आपने ये देखा कि केस जो है वो अलग अलग, एक पॉलिसी मैंने समझाया आपको कि यहाँ पर ये जो लोग हैं कस्टमर केयर वाले, ये जो लोग हैं कस्टमर केयर वाले, जो फॉर्म वो भर रहे हैं वो ये फॉर्म है।
ठीक है, ये वो फॉर्म है जो जब कस्टमर से वो फोन पे बात कर रहा है तो वो ये सारा फॉर्म भरते जा रहा है, फिर बोलेगा अच्छा सर आपकी सिटी बताओ, वो बोलेगा यार मैं मुंबई का है, तो चलो फिर उसने मुंबई कर लिया, उसने सारा प्रॉब्लम समझे क्या प्रॉब्लम है, उसने सब मेंशन कर लिया कि ही इज हैविंग सम इश्यूज इन, समझ लो बूटिंग प्रोसेस है ना, बूटिंग प्रोसेस या फिर लैपटॉप का जो स्पीड है इज लेस, ऐसा कुछ तो भी ना, ही इज मेंशनिंग, वो उधर उससे बात करते जा रहा है, इधर ही इज क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड आल्सो साइमल्टेनियसली, जो भी है ना, ही इज क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड समथिंग लाइक दैट, एंड व्हेन ही सेव दिस, व्हेन अभी यहाँ कस्टमर सिटी उसने मेंशन कर दिया मुंबई, एंड व्हेन ही सेव दिस, when you save this, so because this belongs to, the customer belongs to Mumbai, what should happen, this case should be transferred to Mumbai, this case should be transferred to Mumbai, this case should be transferred to Mumbai। ये ठीक है, आपको यहां तक समझ में आया क्या, पहले बताओ हाँ या ना बताओ, प्लीज टेल मी दिस, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, बिकॉज थोड़ा सा कंसेप्चुअल कंसेप्ट है, सेल्स क्लाउड का, सर्विस क्लाउड का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, सेल्स और सर्विस, अगर लीड है तो सेल्स और केस है तो सर्विस क्लाउड, तो ये थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है, ये समझ में यहां तक समझा क्या, पहले बताओ। ठीक है, ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखो, तो अब हमें करना क्या है, केस का ये जो रिकॉर्ड है, केस का ये जो रिकॉर्ड है इसको ट्रांसफर करना है, हैदराबाद है तो हैदराबाद, बेंगलोर है तो बेंगलोर, मुंबई है तो मुंबई। अब इस केस रिकॉर्ड को ट्रांसफर करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है मैनुअली, ठीक है, और दूसरा होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मैनुअली, दूसरा होता है ऑटोमेटिक, ठीक है, आओ सुनो, एक तो ये है कि आप इस केस को मैनुअली या ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर सकते हो यूजर को, दूसरा क्यूज को, यूजर को और क्यूज को, क्योंकि हमने देखा कि अगर आपका रिकॉर्ड है केस या है लीड, और अगर आप मैनुअली इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं ओनरशिप, तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, आप ओनरशिप यूजर को ट्रांसफर कर सकते हैं या क्यूज को। यूजर तो आपके समझ में आ चुका है, अब मैं क्यूज का कंसेप्ट समझा रहा हूँ, तो क्यूज क्या होता है, तो इन शॉर्ट अगर डेफिनेशन देना चाहूं तो क्यूज का सिंपल मीनिंग होता है, क्यू इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर्स, क्यू इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर्स, यूजर 1 2 एंड यूजर नंबर एन, एन, ठीक है, एन मतलब कुछ भी, यूजर इज अ कलेक्शन ऑफ, क्यू इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर्स। Now, for example, we have in the, this is what हैदराबाद में, हैदराबाद सर्विस सेंटर जो है, हैदराबाद सर्विस सेंटर, वहां पर हमने एक क्यू बनाया, उस क्यू का नाम है हैदराबाद सर्विस क्यू। ये कौन लोग हैं, ये वो हैं जो सारे सर्विस इंजीनियर्स हैं, जिनका काम है कि अगर कोई केस आती है तो उसको हैंडल करना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, मारुति के इतने सारे सर्विस स्टेशंस होते हैं, मारुति बहुत पॉपुलर है इस मामले में, कि आप इंडिया में देखो, आप कहीं भी आप घूम रहे हो, आपकी गाड़ी लेके चले जाओ, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो कैसे ना, मारुति एक ऐसा एक कंपनी है व्हीकल के मामले में, जिसका सर्विस सेंटर आपको हर जगह मिल जाता है। तो मान के चलो कि आप कहीं ऑन द वे हो और आपको आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आप वो डैशबोर्ड खोलिए, उनका बुक निकालिए जो आपको मिलता है बुक गाड़ी के साथ, और आप उसमें टोल फ्री नंबर पे फोन कर दो कि यार देखो मैं जा रहा हूँ और मेरी गाड़ी में ये फॉल्ट आ गया है, अभी ये प्रॉब्लम दे रही है, तो आपसे पूछेगा आप कहाँ पर हो, तो आप बताओगे मैं ये हाईवे पे अप्रोक्सीमेटली ये लोकेशन है मेरा, तो उसके हिसाब से जो भी नियर मोस्ट सर्विस सेंटर होगा वहां पे आपकी केस सबमिट कर दी जाएगी। तो ये क्यू क्या होता है, क्यूज जो होता है, क्यूज का मतलब होता है, क्यू इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर्स। अब क्यूज अलग अलग तरह के हो सकते हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, वो सर्विस इंजीनियर्स है, मैकेनिकल इंजीनियर्स है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स है, उनका क्यू है, हो सकता है क्यूज हो सेल्स क्यू। अगर लीड की बात करता मैं, यहाँ तो ऑब्जेक्ट केस है, लेकिन अगर मैं लीड रिकॉर्ड की बात करता, तो लीड को फिर कौन हैंडल करता था, सेल्स वाले हैंडल करते हैं, तो वो उसमें जितने भी लोग हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स रेप बोलते हैं जिनको, तो उनका एक क्यू होता है। तो क्यू सिंपल क्या है पता है, कि ग्रुप ऑफ यूजर्स है और कुछ नहीं। ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, जैसे मान के चलो कि डॉक्टर्स का एक क्यू है, सर्जन्स का क्यू है, चिल्ड्रंस का क्यू है, इंजीनियर्स का है, तो इस तरह से क्यू इज इन शॉर्ट व्हाट, क्यू इज इन शॉर्ट अ कलेक्शन ऑफ यूजर्स। तो अब हम ये एग्जांपल मान के चलते हैं कि वी हैव 3 डिफरेंट सर्विस सेंटर्स,
ये केस को हैंडल करने के लिए 3 डिफरेंट सर्विस सेंटर्स हैं। हैदराबाद का सर्विस सेंटर है, बैंगलोर का सर्विस सेंटर है और मुंबई का सर्विस सेंटर। नाउ इन एवरी सर्विस सेंटर वी हैव डिफरेंट डिफरेंट क्यूज। हैदराबाद सर्विस सेंटर में वी हैव हैदराबाद सर्विस क्यू, जहां पे 3 से 5 या 9 10 जो भी है इंजीनियर्स हैं। बैंगलोर सर्विस क्यू एंड मुंबई सर्विस क्यू। तो सबसे पहले अभी देखो, आपको दो कंसेप्ट मैं बताऊंगा। पहला, क्यू क्या है, अगर ये क्लियर हो गया आपको, क्यू इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर्स। तो मैं अभी आपको ये सिखाऊंगा कि क्यूज कैसे बनाना। जैसे आपको दिख रहा है हैदराबाद सर्विस क्यू, आपको दिख रहा है बैंगलोर सर्विस क्यू, आपको दिख रहा है मुंबई सर्विस क्यू। तो क्यूज कैसे बनाना वो मैं सिखाने वाला हूँ अभी आपको, है नो। सो हाउ टू फॉर्म द क्यूज, कॉन्फिगर अ क्यू, एक क्रिएट करो। एक कॉन्फ़िगर मतलब एक क्रिएट करो विद द नेम कॉल्ड एज हैदराबाद सेल्स क्यू या हैदराबाद सर्विस क्यू, जो भी है ना ये। तो आप बनाओ उसको, मैं बता सिखाऊंगा आपको ये कैसे बनाते हैं, आप क्यूज कैसे बनाते हैं। फिलहाल अभी थोड़ा सा अपन थ्योरी कवर करते हैं पहले इसकी। तो वी हैव दिस क्यूज, है ना। अब ये मान के चलो कि हमारे पास में 3 अलग अलग क्यूज हैं। हैदराबाद सर्विस क्यू दैट बिलोंग्स टू हैदराबाद सर्विस सेंटर, बैंगलोर सर्विस क्यू दैट बिलोंग्स टू बैंगलोर सर्विस सेंटर, एंड देन मुंबई सर्विस क्यू दैट बिलोंग्स टू मुंबई सर्विस सेंटर। ऐसा। अब ये जो केस है, ये केस जो है, अभी जैसे इसने बोला कि मैं हैदराबाद का हूँ कस्टमर, तो ये जो केस आई, इसको कहाँ भेजना है, हैदराबाद सर्विस क्यू को देना है या हैदराबाद सर्विस सेंटर को देना है या क्यू को, जो भी एक ही बात है। तो अब ये मैनुअली भी ट्रांसफर हो सकती है या ऑटोमेटिकली, वो दोनों सिखाने वालों में आपको, उस पर आप चिंता मत करो। मुद्दा ये कि ये केस ट्रांसफर हो रही है, अब वो चाहे मैनुअली हुई या ऑटोमेटिकली जो भी हुई, केस ट्रांसफर हो गई। किसको ट्रांसफर हो गई, हैदराबाद सर्विस सेंटर को। तो ये आके यहाँ पे रुक गया है ना। इसको थोड़ा छोटा करता हूं मैं अभी। हम्म, हम्म। तो अब ये आके यहाँ पे ये असाइन हो गया, किसको असाइन हो गया, हैदराबाद सर्विस सेंटर को। तो सबसे पहले जब केस आती है, तो केस आएगा हैदराबाद सर्विस सेंटर में, तो वो कहां पे रुकेगा, क्यू के अंदर, हैदराबाद सर्विस क्यू। अभी ये किसको असाइन हुआ है, क्यू को। क्यू में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ये है नंबर 1 इंजीनियर, नंबर 2 इंजीनियर, नंबर 3 इंजीनियर। अब देखो, अभी फिलहाल केस जो है, ना तो इसने लिया है केस जो है, ना तो इसने लिया है, ना ही इसने लिया है और ना ही इसने लिया है। ये तीनों में से किसी ने अभी केस एक्सेप्ट नहीं किया है। हो सकता है भाई तीनों फिलहाल बिजी हैं, तीनों एक एक लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, और तीनों अभी फिलहाल बिजी हैं, इसीलिए ये जो केस है वो वेटिंग पर है। तो जब केस वेटिंग पे है, तो केस भी कहीं ना कहीं तो रहनी चाहिए ना। वरना अब ये लोग तो, अब इन्होंने केस ट्रांसफर कर दिया, इनका काम खत्म, इन लोगों का काम खत्म। अब ये दूसरी केस हैंडल कर रहे हैं, दूसरे कस्टमर से बात कर रहे हैं और देख रहे हैं उसका क्या इशू है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो केस आई है, फिलहाल ये भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो वो केस कहाँ रुकेगी, तो केस रुकेगा एक क्यू के अंदर, और ये है क्यू, हैदराबाद सर्विस क्यू। तो अगर मैं पूछूं कि इस वक्त आपकी केस कहां पर है, इस वक्त, इस वक्त केस कहां पर है, तो आंसर है केस है आपकी हैदराबाद सर्विस क्यू में। तो उस वक्त उसका ओनर कौन है, इसका ओनर अभी कौन है, हैदराबाद सर्विस क्यू, ये इसका ओनर है। अभी इस केस का ओनर कौन है, हैदराबाद सर्विस क्यू, ये इसका ओनर है। अब इसके बाद इसके बाद मान के चलो कि अब ये वाला इंजीनियर खाली हो गया, तो ये बोले कि चलो अब मैं खाली हो गया हूं, मैं ये केस को हैंडल करता हूं। तो अब ये जो केस है, ये इसको असाइन कर दी जाएगी। चलो, आपने बोला कि आप खाली हो गए, ये केस हमने आपको दे दी, ठीक है। तो अब ये जो केस है, ये पहले इसका ओनर कौन था, हैदराबाद सर्विस क्यू। अब इसका ओनर बन जाएगा ये पर्सन, मान के चलो ये है सर्विस इंजीनियर नंबर 1, SE1। तो अब इसका ओनर कौन बन जाएगा, SE1, ये इसका ओनर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने इस केस को एक्सेप्ट कर लिया और इसने बोला कि मेरा काम जो है अभी ये पुरानी केस पे खत्म हो गया है, अब मैं फ्री हूं, अब आप ये केस मेरे को हैंड ओवर कर दो। अब मैं देखता हूं कि भैया इसके लैपटॉप पे क्या इश्यूज है। तो पहले जब तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्यों, देखिए ये जो लोग हैं 1 2 3, सर्विस इंजीनियर 1 2 3, ये कहलाते हैं क्यू मेंबर्स, ये कहलाते हैं क्यू मेंबर, ठीक है। ये अगर ये हैदराबाद सर्विस क्यू का ब्लॉक है ये, तो उसके अंदर जो लोग हैं वो कहलाते हैं क्यू मेंबर। जब भी एक केस इनिशियली आती है, तो वो क्यू को असाइन की जाती है। जब भी एक केस, जैसे ये केस आई थी यहां से, ठीक है, यार बड़ा चक्कर है यार ये।
हाँ, ये जो केस आई थी यहाँ से आई थी, ये एक क्लाइंट ने रेस किया था, यहाँ से आई, ये इसने देखा, फिर इसने ट्रांसफर किया। मैनुअली क्या ऑटोमेटिकली क्या, वो स्टोरी नहीं है अभी, वो सीखने वालेपन। इसने इसको ट्रांसफर किया, ये ट्रांसफर होके कहाँ पर आई, हैदराबाद सर्विस क्यू में। तो जब केस आती है तो इनिशियली उसका ओनर कौन रहता है, सर्विस क्यू, या क्यू उसका ओनर रहता है। और तब तक जब तक कि उसके जो मेंबर्स है, क्यू के जो मेंबर है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब जैसे ये नंबर वन था, ऐसी नंबर वन, ऐसी वन ने बोला कि भाई मैं खाली हो गया हूं, अब आप ये केस मेरे को असाइन कर दो। तो अब ये केस क्यू से हट जाएगी और ये मिल जाएगी एससी नंबर वन को, सर्विस इंजीनियर वन को। तो अब इसका ओनर कौन रहेगा, सर्विस इंजीनियर वन। और ये जो मैं अभी थ्योरी बता रहा हूं ना आपको, ये लाइव देखेंगे अपन, हम देखेंगे इसको, एक केस को मैनुअली भी और ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करेंगे, वो भी करेंगे। हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम इनिशियली ट्रांसफर करते हैं तो पहले वो क्यू को मिलेगा, तो फिर मैं चेक करूंगा कि अभी देखो ये केस का ओनर कौन है, तो पता चलेगा केस का ओनर है क्यू। जैसे हम हैदराबाद सेल्स क्यू, सर्विस क्यू, बैंगलोर सेल्स क्यू, सर्विस क्यू, ऐसा बनाएंगे अभी हम। और आप जो अभी मैं जो थ्योरी बता रहा हूँ, इसी थ्योरी को आप अभी जो है ना प्रैक्टिकली देखने वाले हो। आगे के लेक्चर्स में आप यही देखने वाले हो कि ये असाइन होगा तो सबसे पहले इसका ओनर मिलेगा आपको क्यू। उसके बाद में इसको हम जो है यहाँ क्यू से निकाल के, जैसे ये इंजीनियर बोलेगी इसने एक्सेप्ट किया, मैं वर्क करूंगा, तो अब इसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। और अब इसका ओनर कौन बन जाएगा, सर्विस इंजीनियर नंबर वन, ये इसका ओनर बन जाएगा। ऐसा है। तो ये है पूरा कंसेप्ट, किस तरह से लीड असाइनमेंट होती है, किस तरह से केस का असाइनमेंट होता है। पहले क्यूज को होता है, फिर यूजर को होता है। ठीक है, ये सब ये इसका मतलब थियोरेटिकल कंसेप्ट है। अब मैं आज ये डायग्राम आप लोगों को शेयर कर भी देता हूँ, आज ये डायग्राम जो है मैं शेयर कर देता हूँ इसको ड्राइव पे। और लास्ट तो दिन खत्म हो गया, कल हम लोग एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे क्यूज फॉर्म करने से, कैसे क्यूज फॉर्म करना। तो दो क्यूज फॉर्म करेंगे, एक सेल्स का और एक सर्विस का, फिर हैदराबाद बैंगलोर जो भी रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा हम फॉर्म करेंगे, और फिर उसके बाद में हम उसके आगे देखेंगे, पहले हम मैनुअली कैसे असाइन करना, और फिर उसके बाद में ऑटोमेटिकली कैसे असाइन करना केस को। मैनुअली कैसे असाइन करते हैं केस को, या फिर केस को ऑटोमेटिकली कैसे असाइन करते हैं, वो हम सीखेंगे। तो ऑटोमेटिकली असाइनमेंट रूल्स लिखने पड़ते हैं, क्या होता है वो भी देखेंगे अपन। ठीक है, ये था पूरा इसका थियोरेटिकल कंसेप्ट। हाँ, कल अपन इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। आज क्या थर्सडे ही है ना, हाँ, तो कल एक और दिन है हमारे पास। सो कल समझ लो हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है।